माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जिस ड्रग के बारे में बताने जा रही हूँ वो है हमारी रूबाब। रूबाब जो हमारी ड्रग है, इसको हम लोग ड्रग क्यों बोलते हैं और इसके अंदर कौन से ऐसे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिसके कारण जो हमारा रूबाब प्लांट है उसको हम लोग एज अ हर्बल ड्रग्स ट्रीट करते हैं फॉर प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द रूबाब। रूबाब के अगर हम लोग बॉटनिकल नेम के अगर हम लोग इसके सिनोनिम के बारे में बात करें कि जो रूबाब है उसका सिनोनिम क्या होता है, मीन्स जो रूबाब है उसको हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग ऐसा बोलें कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट कंट्रीज में रूबाब को और क्या क्या सिनोनिम से हम लोग कॉल करते हैं। तो जो रूबाब है इसका जो सिनोनिम है वो होता है हमारा रेडिक्स रियम, दैट इज नोन एज अनदर नेम ऑफ रूबाब। नेक्स्ट इज रियम, रियम इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ रूबाब। And next is Revendra Chinni. These all three are synonyms of rhubarb. Means rhubarb is not a single name. It has a different synonyms. That is Radix Riam and Revendra Chinni. ये सारे के सारे दिस ऑल आर द सिनोनिम्स और द सेकेंडरी नेम ऑफ रूबाब। नेक्स्ट अगर हम लोग रूबाब के बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें कि जो रूबाब हमारा प्लांट है, ड्रग है, उसके कौन से पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा वो उसको एज अ ड्रग हम लोग यूज करते हैं। तो रूबाब जो प्लांट है उसका कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं और उसी पार्ट को हम लोग एज अ फूड ड्रग यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग और प्रिवेंशन ऑफ अ डिसीजेस। तो रूबाब के अंदर हम लोग जो बायोलॉजिकल सोर्स डिस्कस करते हैं, इन दैट बायोलॉजिकल सोर्स 3 थिंग्स वी स्टडी। फर्स्ट वन इज part of the plant from which drug is obtained, and second is botanical name, and third one is their family. तो जो राइजोम है रूबाब प्लांट का, इसका हम लोग क्या पार्ट यूज करते हैं, विच पार्ट वी यूज एज अ ड्रग ऑफ दैट रूबाब प्लांट, दैट इज राइजोम। नेक्स्ट, what is the botanical name of rhubarb? The botanical name is Rheum emodi. Rheum emodi is the botanical name of rhubarb. So we study here what? Their botanical name of rhubarb and their rhubarb plant, which part we collect as a drug? Rhizome. Next we go the family of rhubarb. Rhubarb comes in the family of Polygyneciae. Polygyneciae is the family of rhubarb. Next, we discuss about at which time we collect rhizome part of the rhubarb plant. The time which we collect the rhizome part of the rhubarb plant for treating a disease, we collect it when the plant old is 6 to 7 years, because after a 6 to 7 years the active constituents of rhizome are completely or fully developed in the rhizome of rhubarb. So we can't collect their rhizome
before 6 to 7 years. The reason is this: their active constituents which are present in the rhizome, they are not properly developed or properly grow on that part. So when the plant are old, after 6 to 7 years, after that year we collect a rhizome of rhubarb for use for treating the diseases. Next we go to the next point, that is known as source. Source means geographical source. Geographical source means from where rhubarb plant we collect it, or we can say that from where rhubarb plant found. So where the rhubarb plant found? In China, Korea. In India we talk about in Kashmir and Sikkim. These all are the geographical source of rhubarb where they found. Next we go to the next point, that is known as description. Description means what? Description means about the part of rhizome of rhubarb, what their morphology we see. First one is the rhizome we collect from the rhubarb plant, that we collect in the two forms. First one is flat and second one is rounded. When we collect a rhizome from rhubarb plant, they are obtained in a two form. First one is flat form and second one is rounded form. If we talk about the flat form, flat form is obtained from a large rhizome, and rounded form, flat means like this and rounded means like this. So rounding from where we obtain a rounding form from a small rhizome, and for flat form from a larger rhizome. Next we talk about their order of rhizome. The order of rhizome is sharp, means इसका जो smell होता है, order होता है, that should be a sharp. Next we talk about the taste of rhizome. Its taste is bitter in taste, and their taste is astringent type taste. So both taste they have bitter and astringent. Next we talk about the surface covered. Surface covered means the rhizome covered with a surface layer, the layer which is yellow powder or red color. तो जो rhizome का rhizome जो covered होती है जिस shell से, जिस layer से, that layer should be a yellow in color or a red in color. That surface cover shows कि वो किस लेयर से हमारा राइजोम जो है वो कवर्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, किसको ब्रेक करेंगे हम लोग? राइजोम को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फ्रैक्चर करते हैं। फ्रैक्चर्स मीन्स जब भी हम किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं तो वो या तो स्मॉल पार्ट में टूट रहा है या फिर लार्ज पार्ट में टूट रहा है या फिर वो इजीली ब्रेक डाउन हो रहा है या बहुत हार्डली ब्रेक डाउन हो रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रैक्चर मीन्स तोड़ना। तो जब हम इसके राइजोम को ब्रेक डाउन करेंगे, फ्रैक्चर करेंगे, तो ये हमको इर्रेगुलर ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में क्या होगा? ऑब्टेन होगा। इर्रेगुलर ग्रैन्यूल्स मतलब उसका कोई शेप नहीं होगा। फ्रॉम दैट इर्रेगुलर शेप we obtain when we fractures a
rhizome of rhubarb. Next, if we get a pink color of that fractures, then the pink color shows the high quality of that rhubarb. तो अगर हमको फ्रैक्चर करने के बाद एक पिंक कलर ऑब्टेन हो रहा है, we obtain a pink color, तो उसका क्या मतलब है कि that show a high quality of rhubarb. तो हाई क्वालिटी ऑफ rhubarb से क्या मतलब है कि हमारा जो rhubarb है उसका क्वालिटी क्या है, हाई क्वालिटी है. नेक्स्ट, अगर हम लोग इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करें कि हमारा जो rhubarb है इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण हमारे rhubarb की जो एक्टिविटी होती है. तो rhubarb जो है इसके अंदर जो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो है हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड. एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हमारे ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी होती है जिसके अंदर एंथ्रासीन का रिंग जो होता है ये प्रेजेंट होता है. एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स तो हमारा जो rhubarb है वो एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आता है. इसके अंदर एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स के अलावा इसके अंदर रियम प्रेजेंट होता है, ट्राइसोफेनॉन प्रेजेंट होता है और एलॉय इनोडेट प्रेजेंट होता है. These three are the main active chemical constituents of rhubarb. So this is we discuss about the main active chemical constituents of rhubarb. Next, we go to the chemical test of rhubarb. What is the chemical test of rhubarb? If we do the bond trigger test of the solution of rhubarb drug, they show a positive result. तो ये हमको क्या करेगा, पॉजिटिव बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट के साथ ये हमको पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा. नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग rhubarb पाउडर के साथ या फिर उसके सॉल्यूशन के साथ अगर हम लोग अल्कली को उसके अंदर ऐड कराते हैं, अल्कलीज के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं तो वो रेड कलर शो होगा. ये हमको बताता है कि जो हमारा rhubarb है वो हमारा एंथ्रासीन कैटेगरी का ड्रग है. तो ये हमने इसके बारे में बात करी, केमिकल टेस्ट के बारे में बात करी. नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इसके यूजेस के बारे में कि जो rhubarb है उसको हम लोग एज अ ड्रग कौन कौन सी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं. तो इसको हम लोग एज अ बिटर स्टोमैटिक यूज करते हैं. नेक्स्ट, डायरिया के केस में इसको यूज करते हैं और इसको हम लोग परगेटिव के फॉर्म में भी यूज करते हैं. परगेटिव बिटर स्टोमैटिक का मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो हमारा भूख होती है, हंगरनेस होती है, उसको ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है. डायरिया के केस में क्या होता है कि डायरिया के केस में हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, मतलब जो पानी होता है वो एक्सेस अमाउंट में लिबरेट हो जाता है. तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, इस rhubarb का यूज करते हैं. उसके बाद परगेटिव में हम लोग कैसे यूज करेंगे, जब हमको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में हम लोग अपने स्कूल को वो इजीली पास आउट हो जाए उसके लिए हम लोग परगेटिव का यूज करते हैं. तो हमने आज rhubarb के बारे में क्या देखा कि rhubarb जो होता है, rhubarb का सिनोनिम क्या क्या होता है. सिनोनिम के बाद हमने उसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात डिस्कस किया कि वो हम लोग को कौन कौन से पार्ट से ऑब्टेन होता है. उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके जोग्राफिकल सोर्स के बारे में कि ये कहाँ कहाँ फॉर्म होता है. नेक्स्ट, हमने डिस्कस किया कि जो पार्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं rhubarb का, दैट इज नोन एज राइजोम. वो राइजोम जो है उसका क्या उसका मॉर्फोलॉजी है. नेक्स्ट, हमने देखा कि एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हमारे rhubarb के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण उसकी एक्टिविटी होती है. उसके बाद हमने इसके केमिकल टेस्ट देखे कि कौन कौन से केमिकल टेस्ट करा के हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो rhubarb भी है.
तो इसमें हम लोग बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट लगाते हैं और अल्कली के साथ ट्रीट कराते हैं, तो ये रेड कलर में शो होता है। उसके बाद हमने देखा इसके यूजेस में इसको हमने कहाँ इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू।